to our respected principal ma'am, director sir, teachers, parents and all my students. I welcome you all to the celebration of our Independence Day here at our school. अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। हमने कहा
हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा Good morning to our respected principal ma'am, director sir, teachers and all my dear friends. I am Arohi from standard 10th A and today as we gathered to celebrate the 18th Independence Day of our nation, I feel very proud to stand before you and speak about what freedom truly means. On 15th of August 1947, India finally broke free from British rule after a long and difficult struggle. Thousands of freedom fighters sacrificed their comfort, their dreams, and even their lives so that we could live in a free nation. Names like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Bhagat Singh, and countless other heroes remind us that our freedom comes at a price. But Independence Day is not just about remembering our past, it is also about thinking about our responsibility towards the future. As students, we may feel that there is very little we can do for our country, but every time we study sincerely, respect others, help someone in need, stand against injustice, protect our environment, we contribute to a stronger India. Our country is a beautiful mixture of different languages, traditions, religions, cultures and beliefs. Yet, despite our differences, we stand together as a nation. Today, freedom also means having the courage to dream, to question, to learn and to become the best version of ourselves. The India of tomorrow will be shaped by our choices that we make today. We are not merely the citizens of the future. We are the young minds who can begin creating that future right now. Let us use our freedom wisely and make sure that the sacrifices of those who gave us this nation are never forgotten. So, on this Independence Day, let us not only say proud to be Indian, but also ask ourselves, what can I do to make my country proud? Let us carry the courage of our freedom fighters in our hearts, the value of our constitution in our action, and the hope of a better India in our dreams. With that, I wish everyone a very happy Independence Day. Thank you. शुभ प्रभात आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, प्यारे शिक्षकगण और देश के भविष्य। मैं एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है हम इतिहास पढ़ाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं, बस किस्से नहीं सुनाते हैं। जो बीत गया सदियों पहले आज उसे सजाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। कभी भगत की हुंकार लिखते, कभी बापू का सत्य बताते हैं, कभी सुभाष की गर्जना से बच्चों में जोश जगाते हैं। जिन वीरों ने प्राण दिए उनकी गाथा गाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। ये आज़ादी यूं ही नहीं हम बच्चों को बताते हैं। वीरों की कुर्बानी के हर मन में जलाते हैं। कोई हंसकर फांसी पर चढ़ गया, कोई गोली खा जाते हैं। उन बलिदानों के कारण ही हम स्वतंत्र कहलाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। कभी लहू से लिखी कहानी, कभी आंसू दिखलाते हैं। ये भारत सिर्फ जमीन नहीं, वीरों की पहचान बताते हैं। मिट्टी इसकी चंदन जैसी, सबको ये समझाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। मिट्टी इसकी चंदन जैसी, गंगा जैसी धार बताते हैं। सीमा पर जो खड़ा हुआ उनका गौरव गाते हैं। उनको हमने जिनको कल पढ़ा था आज उनका मान बढ़ाते हैं। हर पन्ने पर भारत माता, हर धड़कन हिंदुस्तान बताते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। कलम उठी तो शब्द बने, ये अर्थ हमें समझाते हैं। शब्द उठे तो गान बने, इतिहास के उन पन्नों से नए भारत का स्वप्न सजाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। हर सपना एक सजाते हैं। जो वीर लिख गए थे कल, हम भारत हम बनाते हैं। तिरंगे की ऊंचाई को हर पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। हम इतिहास पढ़ाते हैं। जय हिंद। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदया, सम्मानित शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम आराध्या है और मैं कक्षा 10 ब की छात्रा हूँ। आज हम सभी यहाँ अपने देश के सबसे गौरवपूर्ण पर्व स्वतंत्रता
स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। साथियों, 15 अगस्त केवल एक तारीख नहीं है, यह हमारे देश का वह स्वर्णिम दिन है जब वर्ष 1947 में भारत ने लगभग 2 शताब्दियों के ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इसके पीछे अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का संघर्ष, त्याग, साहस और बलिदान था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देशवासियों को एकजुट किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने अदम्य साहस से देशभक्ति की भावना जगाई और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ऐसे असंख्य वीरों ने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित कर दिया। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में केवल कुछ महान नेताओं का संघर्ष नहीं था। देश के सामान्य नागरिकों, विद्यार्थियों, महिलाओं, किसानों और युवाओं ने भी स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही सामूहिक प्रयास भारत की आज़ादी की सबसे बड़ी ताकत बनी। साथियों, आज हम जिस खुले आसमान के नीचे स्वतंत्रता से सांस ले रहे हैं, उसके पीछे उन सभी वीरों का हाथ है। हमें बोलने की स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार और अपने भविष्य को चुनने का अवसर प्राप्त है। लेकिन स्वतंत्रता का अर्थ केवल अधिकार प्राप्त करना नहीं है। स्वतंत्रता के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारी भी आती है। इसलिए हमें स्वयं से एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या केवल आज़ाद होना ही पर्याप्त है? मेरा मानना है नहीं, स्वतंत्रता के साथ कर्तव्य और जिम्मेदारी भी आती है। सच्ची स्वतंत्रता तभी सार्थक होगी जब हमारा देश अशिक्षा, भ्रष्टाचार, भेदभाव, गरीबी, अंधविश्वास और असमानता जैसी समस्याओं से भी मुक्त होगा। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां हर बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सके, जहां किसी गरीब को गरीबी के कारण अपने सपनों से समझौता न करना पड़े, जहां मेहनत करने वाले व्यक्ति को उसका पूरा सम्मान मिले और जहां ईमानदारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे सबसे बड़ी ताकत हो। यह जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, अपितु हमारी भी है। हम विद्यार्थी हैं, इसका अर्थ केवल यह नहीं है कि हमारे देश के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। हम विद्यार्थियों के लिए देशभक्ति का अर्थ केवल 15 अगस्त को झंडा फहराना और देशभक्ति के गीत गाना नहीं है। हम मन लगाकर पढ़ाई करके, अनुशासन का पालन करके और गलत चीजों के प्रति आवाज उठाकर हम अपने देश के निर्माण में योगदान दे सकते हैं और एक जिम्मेदार नागरिक बन सकते हैं। आज हमारे सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, वैज्ञानिक देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, खिलाड़ी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं और किसान, इंजीनियर भविष्य को आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि भारत का भविष्य केवल सरकार के हाथ में नहीं, हमारे और युवाओं के हाथ में भी है। आइए हम स्वतंत्रता दिवस पर न केवल झंडे को सलाम करें बल्कि उन मूल्यों को भी अपनाएं जिनके लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें आज़ादी दी थी। हम संकल्प लेते हैं, हम केवल अपने अधिकारों के बारे में नहीं सोचेंगे बल्कि अपने कर्तव्यों को भी पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे, अशिक्षा और असमानता को दूर करने में योगदान देंगे, गरीबी और भेदभाव के विरुद्ध खड़े होंगे, भ्रष्टाचार और बेईमानी को बढ़ावा नहीं देंगे, समानता, स्वच्छता, सम्मान बनाए रखेंगे और हर नागरिक को आगे बढ़ने का अवसर देंगे। क्योंकि भारत केवल एक देश नहीं है, हमारी पहचान है, हमारा गौरव है और हमारी जिम्मेदारी भी है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने महान सेनानियों को याद करें और हम अपने देश को बेहतर, मजबूत और गौरवशाली बनाने में योगदान देंगे। और अंत में मैं कुछ पंक्तियों के साथ समाप्त करना चाहूंगी। खून का हर एक कतरा इस वतन के नाम होगा, खून का हर एक कतरा इस वतन के नाम होगा, हमारी हर एक सांस में इस हिंदुस्तान का नाम होगा। मिले जो दोबारा जन्म इस पावन धरती पर, मिले जो दोबारा जन्म इस पावन धरती पर, तो हर जन्म में तिरंगा ही हमारा कफन और पहचान होगा। और अंत में बस यही कहूंगी, दुश्मन की हर एक चाल को हम
धूल में मिला देंगे, जरूरत पड़ी तो इस भारत माता के लिए अपनी जान भी लुटा देंगे। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। हर धर्म अपना करे,
सबसे पहले हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मैम, डायरेक्टर सर, हमारे सम्मानित शिक्षकगण और हमारे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आप सभी को 80वीं ये 80th आप इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 80 साल हमारी आज़ादी की हो गई है, तो आप सबों की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और इस आज़ादी के पर्व को आप सब झूम के मनाएं। लेकिन ये आज़ादी कई शब्दों में मुझे स्वीकार भी और कई शब्दों में मुझे नहीं भी। तो पहले 2 लाइन इस आज़ादी को मैं क्या चाहता हूँ। ये भारत हमें तो मिल गया, लेकिन हमें और भारत बनाना है। मुझे ये भारत मिल गया, लेकिन हम अभी उतने तक सीमित नहीं हैं। हम आप मिलके इसे और भी बेहतर। पहले 2 लाइन है कि हम भारत को भारत देश बनाएंगे, हम भारत को भारत देश बनाएंगे, हम भारत को भारत देश बनाएंगे, पत्थर से पत्थर को आग लगाएंगे, पत्थर से पत्थर को आग लगाएंगे, इतिहास बनी जो गवाह वो भूल रहे हैं हम, इतिहास बनी जो गवाह वह भूल रहे हैं हम, सदियों से मिट्टी की जो मिली है खाक वो झूल रहे हैं हम, धूमिल हो रही परिपाटी को वापस लाएंगे, हम भारत को भारत देश बनाएंगे, हम भारत को भारत देश बनाएंगे। तो ये मुझे भारत नहीं पसंद है। अब एक आपको बहुत अच्छी कविता है, सुनिए कि मातृभूमि के लिए जो प्राण दे दिए सपूत, मातृभूमि के लिए जो प्राण दे दिए सपूत, ऐसे राष्ट्रभक्तों का सम्मान होना चाहिए जिस धरती का हम ले रहे हैं अन्न और जल, जिस धरती का हम ले रहे हैं अन्न और जल, उसकी कृतज्ञता का भान होना चाहिए। देश है हमारा और हम देश के हैं लाल, देश है हमारा और हम देश के हैं लाल, देश पर हमें स्वाभिमान होना चाहिए। और जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, इसके लिए तो बलिदान होना चाहिए, इसके लिए तो बलिदान होना चाहिए। मातृभूमि के लिए हमें सपूतों को प्रणाम होना चाहिए। गजभर छाती नेत्र जलते मशाल जैसे, गजभर छाती नेत्र जलते मशाल जैसे, भारत के वीर स्वाभिमानी को प्रणाम है। राष्ट्र प्रेम जिसकी रगों में खौलता सदैव, उस राजपूत की जवानी को प्रणाम है। और शीश को रेत 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 हो गया प्रदेश, क्योंकि चढ़ गया जिसकी कृपाण पर पानी को प्रणाम है। शीश को झुकाओ नाम उसका राणा प्रताप, अमर अजय बलिदानी को प्रणाम है। और तुम मुझे खून दो आजादी तुम्हें देंगे हम, तुम मुझे खून दो आजादी तुम्हें देंगे हम, घोष करते हुए सुभाष बलिदानी थे, जिनकी शिराओं के लहू में राष्ट्र भावना थी, झुके नहीं शत्रु के समक्ष स्वाभिमानी थे, जिनकी न मृत्यु का पता न लगा न देश अमरत्व और अलौकिक जवानी थे, दूसरा न कोई इस देश में दिखाई पड़ा, खुद ही सुभाष के सुभाष की एक शानी थे। ऐसे वीर भक्ति को मेरी प्रणाम है, सलाम है। और आप सभी को पुनः फिर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। A very happy Independence Day to each and everyone present here in the campus of Jesus and Mary Academy.
We have entered the 88th Independence Day of our country. 79th Independence खत्म हो गया 1947 से, और अब 80वां 80 इंडिपेंडेंस डे जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। We call Independence Day as our national festival. फेस्टिवल जो किसी याद में, यादगारी में मनाया जाता हो, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए इससे बड़ी यादगार दिन और कोई नहीं हो सकती। वो है 15 अगस्त 1947। कई कल्चरल प्रोग्राम्स अभी आपके सामने हुए, उसमें एक गाना बजा अभी तुरंत, बच्चियां गा रही थी, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। How many of you are ready to sacrifice your life for your nation? अगर आज मैं ये सवाल इस कैंपस में खड़े किसी भी एक बच्चे से पूछूं तो शायद कोई भी अपना हाथ ना उठाए। किसी और के लिए अपनी जान की कुर्बानी देना आसान नहीं है। तो जब हम हर साल 15 अगस्त मनाते हैं और उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने बिना हिचक, बिना किसी भय के, कोई वॉर नहीं हुआ, रणभूमि नहीं थी जहां किसी और देश के सिपाही और हमारे देश के सिपाही आमने सामने जंग किए। एक ऐसी हुकूमत के खिलाफ हम लोगों ने जंग किया जो हमारे देश की भूमि के अंदर हमारे साथ ही रहता था। आज 80 साल के बाद भी ऐसे कई दुश्मन देश में नहीं, आपके दिल के अंदर भी हैं। उस दुश्मनों से अगर मैं 5 से 6 आपको गिनाऊं तो आपको लगेगा कि हाँ, प्रिंसिपल मैम सही कह रहे। वो कौन से दुश्मन है जो आज भी आपके दिल में घर किए हुए हैं? अहंकार, जलन, द्वेष, घमंड, षड्यंत्र। क्या इन सारी चीजों से आपको आजादी की जरूरत नहीं है?